So yesterday we had started the study of Bhaj Govindam in our attempt to be guided by our scriptures in daily satsang. So Bhaj Govindam is a text which was originally named Moha Mudgar. In fact, it is still known as Moha Mudgar in the scholarly world, Mudgar being a hammer and Moha being a delusion. So this text is a hammer on the delusions that we hold. So delusions being our wrong thinking. In fact, in Gita also, the story starts with Arjun's delusion, and it took 700 verses to remove the delusion of Arjun, whereas Bhagwan attempts to do it in mere 31 verses in Moha Mudgar or Bhaj Govindam. When we talked of Bhagwan walking the streets of Varanasi and seeing a person standing on his head and chanting rules of grammar, and he burst out spontaneously out of his love for him in what is called Dwadash Manjarika Stotram, 12 verses Stotram, which were given by Bhagwan Sri Adi Shankaracharya. He was accompanied by 14 disciples, and they joined him and gave 14 more verses. So that added up to 27, 12 and 14, 26, and the first one is your verse Bhaj Govindam, which is chanted after every verse. And thereafter, to sum up, Bhagwan has given 4 more verses. So there are 31 verses in all. That is how this text is laid out. Then we also saw the 3 meanings of Bhaj, 3 meanings of Go, and with it the Vindati, which takes the corresponding form. So we will not go into that again. What we need to see a little more closely is the dhatu he is used with Dukran. Dukran, as I said, is a grammatical term used by Panini in his Ashtadhyayi, and Karne is the dhatu, Sanskrit dhatu. Kri is the dhatu, and from this Kri also comes Karm. So some acharyas hold the view that this is also Acharya's way of saying that karma will not take you to supreme. And this has resonance in Upadesh Sar of Ramanna Maharshi, where in the very first verse he says, Karturagya prapate phalam karma kim param karma tajjadam. So he says, action yield fruits, for so the Lord ordains. But how can action be the Lord? Because action itself is inert. So karma is jadam. So it cannot take you to the Chetan. How can Jad take you to Chetan? That is the import of this, usage of Kri Dhatu in this. So 2 things he is blown away in this first verse. One is engagement with the worldly pursuits, and secondly, expecting karma to take you to the threshold of the Supreme. Having said this much,
we'll move to the next verse. Also, I would like to say that Govind was the name of Bhagwan Shankaracharya's Guru. So, verse 1 can also be seen his offering to his Guru when he says Bhaj Govindam, Bhaj Govindam. That forms part of Mangalacharan, where he dedicates what he is going to deliver to his Guru, to the Lord, because Govindam is also the Lord and the Brahman. So all these things are important when we are studying a text. So I'll read the second verse. मूढजहि धनागम तृष्णाम कुरु सद्बुद्धिम मनसि वितृष्णाम यल्लभसे निज कर्मोपातम वित्तम तेन विनोदय चित्तम भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते संप्राप्ते सन्निहिते काले नहीं रक्षति डुक्कण करने. Now in verse 2, he straightway calls a person mood who has got thirst for wealth. Mood jahihi dhanagam trishnam. O fool, give up the thirst for wealth. Now, two things we have to keep in mind. One is, he is talking about thirst. And second thing is talking of wealth. So, thirst is greed and wealth stands for every other possession that we seek to acquire. Kuru sad buddhim mansi vitrishnam. So he says, give up this thirst for wealth. Instead, kuru sadbuddhim, engage in sadbuddhim, in the reality, in the Lord. Mansi vitishnam, by purifying your mind and making it free of all passions and desires, or we can say by sitting in vairagya. Yal se nij karmo patam. So, as a reward of your past actions. Past actions means, here we have to understand, whatever you are doing as your duty. Whatever you get as a result of doing your duty, that vittam, that wealth should give you happiness, should give you contentment. So this is the entire verse. Do not have thirst for wealth or possessions. So get absorbed in the Supreme and be established in Vairagya. Now somebody might say, how is it possible? Vyavhar kaise chalega? So he says, you be established, you be happy and content with what you get from your dharmic actions done as a matter of duty. Now we can go into each of these. In fact, Isavasya has said a similar thing, where he says that Tien tyakten bhunjitha, give up and enjoy. So, question is, give up what? And what we have understood is,
It is giving up of all the worldly distractions that keep us from pursuing the goal. Bhunjitha is enjoy. You can only enjoy the Lord if you give up the pursuits of worldly possessions, and that naturally follows from vairag, which comes from nitya anitya vivek, which flows from विचार. आप नित्य अनित्य का विचार करेंगे, आप अनित्य को छोड़ेंगे, नित्य को पकड़ेंगे, तभी आप इन सब चीज़ों से मुक्ति पा सकते हैं. इट इज़ लॉजिकल. और हम ये भी देखते हैं दैट अवर ग्रीड, लोभ, हैज़ नो लिमिट. गांधी जी ने तो ये भी कहा है दैट वी हैव इनफ टू मीट द नीड्स ऑफ एवरीबडी, बट we cannot meet the greed of even one person. So that is the danger of greed. हम जो कर रहे हैं तल्लीनता से, which we saw in Bhajgo in Sadhan Panchkam, what we are getting as a result of our dedicated duty, we should be content, give up this greed, and be established in the reality through the vairag for attachment to the things around. So here this second verse is dealing a hammer blow on our delusion, where we think our happiness and our joy lies in greed and acquisition of all the possessions that we can possibly dream of and think of and see of. जो दिख गया, वो अच्छा लगा, वो हमारे पास होना चाहिए, और फिर हम उसके पीछे लग जाते हैं. And this is what we saw in Gita is the ladder of fall. Any object that catches our attention, in due course we start craving for it, working for it, and then there is no end. मिल जाएगा तो फिर और चाहिए. ये दिल मांगे मोर. So now question is how to get that love for that Lord, that reality, सद्बुद्धि. तो उसका भी क्रम जो है क्लियर है. भज गोविंदम, फर्स्ट 3 गोविंद्स, कर्म, भक्ति, ज्ञान. तो ज्ञान से आप नित्य अनित्य का विवेक कर रहे हैं. जब आप वैराग में बैठ रहे हैं तो आप भक्ति जो है प्रभु की कर रहे हैं, और अपने कर्मों को कर्म योग से शुद्ध करते हुए, मन को शुद्ध करते हुए आगे बढ़ रहे हैं. और इसके अंदर जो एक और मतलब जो ऐड करा है विच इज़ वेरी गुड इज़ कंटेंटमेंट. इफ़ यू हैव कंटेंटमेंट, ओनली देन कैन यू सिट डाउन इन पीस. कंटेंटमेंट नहीं है तो आप वो ग्रीड और बाकी सब चीज़ें हैं ही हैं. सो दिस इज़ व्हाट आई हैव अंडरस्टूड. अनिल जी, रमन जी, आप जो कंट्रीब्यूट करना चाहें आज के सत्संग में, कोई क्वेश्चंस हो. रमन जी, would you like to go? नारायण, मैं थोड़ा सा जो सुना उसको सोच रहा था कि इसमें प्रवृत्ति मार्ग और निवृत्ति मार्ग को इससे कैसे इससे मिला के देख सकते हैं. जैसे कि जो डिजायर्स या ग्रीड की बात कही है, और जो प्रवृत्ति मार्ग, इसको क्या प्रवृत्ति मार्ग में के थ्रू समझा भी जा सकता है, या और कर्म योग को हम एक साधन के रूप में लेंगे तो क्या वो निवृत्ति मार्ग का ही साधन कहलाएगा, या
प्रवृत्ति मार्ग में भगवत प्राप्ति का वो साधन है, तो कुछ उस तरह से एकदम दिमाग में थॉट चलने लगा सुन के, तो उसी पे थोड़ा सा विचार कर रहा था। तो अभी कुछ एसिमुलेट नहीं कर पाया, तो अभी आगे तो नहीं बोल पाऊंगा, लेकिन हाँ किस डायरेक्शन में कुछ विचार चला अभी सुन के। अरुण जी, आप कुछ रिस्पॉन्ड करेंगे या मैं शेयर करूं? हाँ, आप करिए अनिल जी। मुझे तो जो ये शब्द जही है ये बहुत ही प्यारा लगा, और जो आपने ईशा वसाई की भी बात की कि तेन तख्तेन वंजिता, तो प्रभु को भी आदमी तभी प्राप्त करेगा जब ये क्लेश जो होता है, हम जो ये सांसारिक चीजों में फंसते हैं, जो आपने साधना पंचकम में भी कहा था कि भाई प्रभु द्वेष में कभी निवास नहीं करते हैं, तो जो क्योंकि ये तृष्णा द्वेष क्रिएट करती ही है, तो उसको छोड़ना तो मस्ट है, जो निवृत्ति की बात शायद रमन जी कह रहे हैं। और दूसरी चीज, इवन जो सांसारिक चीजें हैं, जैसे मैं देखता हूँ कि बिटिया के स्कूल में गए, उसका बहुत अच्छा डांस हो रहा है, तो अब हम डांस देख रहे हैं या उसका वीडियो लेने में, हम वो उस मोमेंट को कैप्चर करने में उस मोमेंट को ही खो देते। तो सांसारिक लेवल पे भी जो हमारी पकड़ने की प्रवृत्ति है, जैसे मैं कोई काम कर रहा हूँ, अगर काम में तल्लीनता आ गई तो उसी पल आपने उस काम, इस दुनिया को भी एंजॉय किया। तो जो ये ईशा वसाय में है कि तेन जो लोग छोड़ते हैं वही एक्चुअली एंजॉय कर पाते हैं। तो ये तो बहुत ही मतलब छोड़ने वाली बात, और जो ये तृष्णा है, मेरे ख्याल से मेरी तो यही सबसे बड़ी बाधा है। मुझे लगता है कि ऐसी तृष्णा है कि बार बार मैं भूल जाता हूँ। प्रभु कृपा कर रहे हैं कि दिख रहा है कि असीम है, ऑलरेडी बहुत उन्होंने कुछ दिया हुआ है, लेकिन फिर भी ऐसे पल आते हैं जब ये मोह जो है वो कब इंटेलेक्ट पर छा जाता है, हावी हो जाता है, हावी हो जाता है। और बाकी दिया तो परमात्मा ने, मतलब सांसारिक लेवल पे तो पर्याप्त है, जरूरतें तो बहुत ही कम है। तो जरूरतों से परमात्मा ने बहुत ज्यादा ऑलरेडी दिया हुआ है। तो एंड में जो फिर यही बात है कि बुद्धि को जो है कृष्णा से हटा करके सत्य की तरफ करें और गोविंद को भजें। तो चाहे कर्म करें, चाहे भक्ति करें, चाहे सत्संग करें, वो गोविंद ही रहें। ऐसा मेरे को बहुत अच्छा भी लग रहा है ये सोच करके, और ये दिख भी रहा है कि ये तृष्णा में फंसे हुए, जो वो मोह मुदगर आप कह रहे हैं, ये हैमर है जो कह रहे हैं कि मूड मते वो फूल, कहाँ तुम जो है तृष्णा में फंसे हुए हो, और उस चक्कर में न प्रभु और न प्रभु की दुनिया, दोनों को बहुत ही लिमिटेड ढंग में एंजॉय कर रहे हैं या फंस जा रहे हैं, जब जो वो पल है वो फंसने वाले पल। वेरी राइट। तो अब उसमें ये अनिल जी, हैविंग रियलाइज दिस मच, तो आपको क्या लगता है इससे कैसे उजाला कैसे है इसका? उसमें तो जो आपने बहुत समय पहले जब हम कर्मयोग भी कर रहे थे कि आप ये कहते हैं कि संसार और परमात्मा को, स्पिरिचुअल और वर्ल्डली लाइफ को अलग अलग मत करो। तो दिन भर जो है मैं कोशिश तो कर रहा हूँ, दिन में 2-3 बार तो डेफिनेटली पॉज करके, और जो मन ऑब्जेक्ट्स में लगा हुआ है उसको प्रभु की तरफ करते हैं। तो उससे जो है मेरे को लगता है शांति ही शांति है, और जो ये तृष्णा है, या अगर कभी तल्लीनता या उसमें अगर कभी क्या तल्लीनता में कमी आती है, तो जिस समय तल्लीनता में कमी आए उस समय
जो ये मन की दिशा बाहर से अंतर्मुखी कर दिया जाए, की तरफ कर दिया जाए, इसी श्लोक पर अगर जाए। जैसे अभी मैं थोड़ी देर में वाइफ ने कहा है कि उसका कजिन आया है सिंगापुर से, तो उससे मिलने जाना है दूसरी कजिन के पास। तो इन सब के साथ भी अपनी ड्यूटीज करते हुए, एंजॉय करते हुए, प्यार करते हुए, उनकी बातें उनके जीवन में सुनते हुए, और वही प्रभु को याद रखना है इस पूरी। दिस इज हाउ आई एम काइंड ऑफ। नहीं, ठीक है, बिल्कुल अनिल जी। आई थिंक इट रिलेट्स परफेक्टली विद व्हाट वी हैव डन इन साधन पंचकम ऑल्सो। अपनी ड्यूटीज़ तो तल्लीनता से करें और अर्पित करते रहें, और फिर हमने उसके बाद वो भी कहा था कोई और विचार आ जाए तो उसको भी अर्पित कर दें। अभी ये रमन जी का जो प्रश्न है कि निवृत्ति और प्रवृत्ति मार्ग जो हैं कठोपनिषद में बताए गए हैं, और कहा यह गया है कि भाई आप जो है जो श्रेयस है उसको अडॉप्ट करें और प्रेयस को ना करें। लेकिन जो प्रवृत्ति मार्ग है वो जब तक कंप्लीट नहीं होगा तो निवृत्ति में भी नहीं बैठेंगे। तो इनका प्रश्न ये है, कर्म योग से क्या ये निवृत्ति की ओर बढ़ जाएंगे? हैव आई अंडरस्टूड यू करेक्टली रमन जी? हाँ जी। तो रमन जी, निवृत्ति इज when you feel satisfied with whatever your desires were, now they are no more. That is a state of vairagya. And now you are ready to dedicate fully for realization of yourself. ठीक है? अब वो स्टेटस जो है वो अभी जब तक आप सांसारिक व्यवहारिक उसमें लगे हुए हैं कि मेरा ड्यूटी है, विद इन कोट्स, ये मुझे ड्यूटी करनी है, विच मीन्स अभी आप जो है प्रवृत्ति मार्ग पर ही हैं। और प्रवृत्ति मार्ग में अगर आप कर्म योग से करते हैं तो उसके अंदर 2-3 एलिमेंट्स हैं। सबसे पहले ये है कि उसमें आप कर्तापन ना रखें, और एक बहुत बड़ी चीज़ है, अगर आप कर्तापन नहीं रखेंगे तो क्या करेंगे, कैसे करेंगे, वो इटसेल्फ इज़ अ पॉइंटर टुवर्ड्स निवृत्ति। फिर दूसरा, जो भी आप करेंगे वो प्रभु को अर्पित कर देंगे। और तीसरा, जो आपका फल है उसके साथ आपका तादात्म्य नहीं होगा, और जो आप अर्पित कर रहे हैं तादात्म्य आप उनसे करेंगे, दैट इज़ प्रभु से। तो अगर आप ये तीनों एलिमेंट को प्रॉपरली समझें तो ये रामबाण है टू गेट यू आउट ऑफ प्रवृत्ति व्हेन योर टाइम हैज़ कम। और अगर आप इस कर्म योग का सहारा नहीं लेते हैं तो फिर क्या है, बहुत मुश्किल काम है। फिर वो 2 चीज़ें और रह जाती हैं, जैसे आपका योगियों का साधन है चित्त वृत्ति निरोध, तो उसके ऊपर कई बार बात हुई है कि वो चित्त की वृत्तियों का निरोध जो है तब तक है जब तक आप समाधि में बैठे। जैसे आप समाधि से बाहर आते हैं वो सारी वृत्तियाँ वैसी वैसी खड़ी हो जाती हैं। तो जड़ से जो काटने वाला काम है वो लगता है कि कर्म योग बहुत सुंदरता से कर देता है। कर्म है, जप है, उपासना है, ये सब चीज़ें आप अपना जो भी इष्ट देव का नाम है वो जपें। इससे आपका जो है मन की शुद्धताई और ये जो जिसे अभी इन्होंने यूज़ करा तृष्णा, इनसे आप आसानी से निकल सकते हैं। और फिर जब आप निकलेंगे तो फिर रिजल्ट इज़ निवृत्ति ओनली। तो अब इसका कनेक्शन तो है, बट कनेक्शन उसी के लिए है जो बिल्कुल क्लियर
विचार करके, समझ के कि भाई मैं कर्मयोग कर रहा हूँ बिकॉज मैं अल्टीमेटली नित्य के साथ एसोसिएट होना चाहता हूँ। ठीक है ना? अदरवाइज आप निवृत्ति करके करेंगे क्या? अब वो अर्जुन जो है वो जा रहे थे वन में कि जी मैं भीख मांग के रह लूँगा और मैं लड़ाई नहीं करूँगा। तो प्रभु ने कहा तेरी वृत्तियाँ तो हैं लड़ाई करने वाली, तू वहाँ कैसे रहेगा? तो ये उनको प्रवृत्ति का मार्ग पता है कि पहले तू यहाँ से अपनी वृत्तियों को शीतल कर थ्रू कर्मयोग। यू फाइट अ राइटुअस वॉर विदाउट गेटिंग इन्वॉल्व विद व्हाट इज हैपनिंग। आप सारी गीता को आप देखेंगे, बार बार एक मैसेज देते हैं प्रभु और कहते हैं राइज एंड फाइट, उत्तिष्ठ भारत, खड़े हो, विगत ज्वर, विदाउट गेटिंग एजिटेटेड, फाइट। सो कर्म योग रामबाण है आपका शुद्धता ही के लिए। आगे बढ़ने के लिए आपको ज्ञान का, भक्ति का, सबका सहारा और लेना पड़ेगा, ऐसा मैं समझता हूँ। हैव आई बीन एबल टू एक्सप्लेन व्हाट यू आस्क्ड? हाँ जी। Anything else, Anilji, or should we wind up? No, I think this is fine. Very good. So we meet again tomorrow. I'll say the concluding prayer. Om Purnamada Purnamidam Purnat Purnamudachyate Purnasya Purnamadaya Purnameva Vashishyate. Om Shanti Shanti Shanti. Hari Om. Shri Gurubhyo Namah. Hari Om. Hari Om. Thank you all for joining. May Lord's blessings be with us. May we ultimately reach our destination. Hari Om. Hari Om. Hari Om. Narayan. Narayan.